Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are staying healthy and safe. Today, I am going to teach you a new lesson from your English literature book. That is lesson number 5, and the name of the lesson is Lazy Day. First of all, I am going to read the whole lesson, and after that, I will explain to you its meaning. Here, I have taken only half of the lesson, and the rest of the lesson I will be explaining in another video. So, okay, let's start with the reading. One fine day, Mum woke up long after the alarm clock went off. Today is a lazy day, she declared. So, breakfast was berries and bananas, and nobody cooked. We all left our bowls in the sink and went outside where there was plenty to look at. For the rest of the morning, we took it easy and did nothing. But look, Dad looked at the shed that needed painting. But nobody paints on lazy day, so he watched the squirrels instead. They were scurrying around the garden looking for something good to eat. Grandma looked at the weeds sprouting in her flower garden. But nobody pulls out weeds on lazy day, so she watched the butterflies instead. They were dancing about the petunias. Grandpa looked at his dusty red van that needed washing. But nobody washes vans on lazy day. So he watched Mrs. Albert's pet duck chase the postman and laughed. Mum watched our cat stalking a sunbeam. So this is what we are going to, read today, and now I'm going to explain to you its meaning. Lazy day means ek sust din. Lazy means sust. That is when we don't want to do any sort of work. जब हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, जब हम सिर्फ we just want to sit around, हम बैठना चाहते हैं, we just want to take a rest, we don't want to do any sort of work, we don't want to be active. So we call it as lazy. Okay, so this lesson is all about a lazy day. So how a day turned out to be lazy, कैसे ये lazy हुआ ये हमें पता चलेगा इस lesson को पढ़ के. One fine day, Mum woke up long after the alarm clock went off. So जो writer है he says that एक दिन क्या हुआ कि इनकी जो mother थी उन्होंने alarm रखा था, और जब alarm हुआ उसके काफ़ी टाइम, जब वो बंद हो गया, अलार्म जब बंद हो गया उसके काफ़ी टाइम बाद इनकी मदर जो है वो उठी. अदरवाइज वाई डू वी कीप एन अलार्म? हम अलार्म रखते हैं कि जो ही अलार्म होगी तो वी विल गेट अप. बट व्हाट हर मदर डिड वाज, even when alarm जब alarm हुआ, and even when alarm went off, she still did not get up. But उसके काफ़ी टाइम बाद वो उठी. तो जो ही वो उठी, she just declared कि आज जो है आज lazy day है, because she was not able to get at the right time. She was not able to get at the proper time. वो थोड़ा late उठी, वो early नहीं उठ पाई. So that because of that she declared it as a लेजी डे. तो उन्होंने इस दिन को एक लेजी डे करार दिया, बिकॉज इनका डे जो है वो स्टार्ट ही लेजीनेस से हुआ. सो दैट्स वाई शी डिक्लेयर्ड इट एज अ लेजी डे. So breakfast was berries and bananas and nobody cooked. So what they did was, usually what we do is whenever we get up early, or whenever our mothers get up early in the morning, they just cook breakfast for everyone in the house. But what the writer's mother did was, they didn't cook anything. Neither her mother nor someone else from the family cooked anything, but they had some fruits like berries and bananas. So they just ate that. उन्होंने वही खाया ब्रेकफास्ट में. they didn't make any breakfast. उन्होंने कुछ ब्रेकफास्ट में नहीं बनाया. इन्होंने फ्रूट्स जो इनको ला के थे तो उन्होंने वही खाए. तो they didn't cook breakfast. So that means because they felt कि एक lazy day था, because nobody was willing to do anything, nobody was willing to do any sort of work. We all left our bowls in the sink and went outside where there was plenty to look at. So after that, what was the third thing that was a bit that showed a bit of laziness was that इन्होंने जिन bowls में फ्रूट्स खाए, इन्होंने उनको वैसे ही सिंक में रख दिया, बिना उनको धोया भी नहीं, वहीं पे रख दिया, एंड ये बाहर चले गए बिकॉज बाहर बहुत कुछ था देखने के लिए. ओके, सो
ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग दे डिड वाज, इन्होंने स्टार्ट जो दिन किया, एक तो ये लेट उठे, जो इनकी मदर थी तो ऑब्वियसली फिर सारे लेट उठे, फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया बल्कि जो इनको फ्रूट्स ला के थे वही खाए, एंड देन जिन यू नो यूटेंसिल्स या जो भी इनके पास बाउल्स जिनमें इन्होंने ये खाए, तो इन्होंने उनको भी वैसे ही रखा बिना धोए सिंक में रखा, एंड ये बाहर आए सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, एंड दे स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, दे स्टार्टेड टू लुक एट द थिंग्स आउटसाइड, बिकॉज देयर वाज सो मच, बाहर बहुत कुछ था देखने के लिए। फॉर द रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग वी टुक इट ईजी एंड डिड नथिंग बट लुक। तो पूरी सुबह जो भी थी, सुबह का जितना भी टाइम था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, दे डिडंट डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क बट दे वर जस्ट लुकिंग एट द थिंग्स, दे वर लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स आउटसाइड देयर हाउस। तो जो दे जस्ट टुक इट ईजी, इन्होंने कुछ कुछ स्ट्रेस नहीं लिया इस बारे में कि ओ माय गॉड लेट हो गया समथिंग लाइक दैट, नो, दे जस्ट वर वेरी calm and relaxed and they were watching things around them. Dad looked at the shed that needed painting. जो इनके पापा थे, because they were now right now outside their house, तो इनके जो dad थे, he just looked at the shed. जो shed होता है, एक कमरा होता है एक्स्ट्रा घर के बाहर, जहाँ पे हम एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं, स्टोरेज के लिए चीज़ें रखते हैं। तो ही जस्ट लुक्ड एट द शेड एंड ही फेल्ट कि उसको पेंटिंग की ज़रूरत है, बट सिंस ये एक लेज़ी डे था फॉर एवरी पर्सन इन द हाउस, सो ही जस्ट इग्नोर्ड इट, उन्होंने कहा चलो आज मैं नहीं करूँगा। But what he did was he instead started watching the squirrels. Okay, तो इसके बदले वो क्या करने लगे, इनको लगा कि शेड को पेंट करना ज़रूरी है, बट बिकॉज ये लेज़ी डे था इन सब के लिए, तो इन्होंने कहा वो नहीं करेंगे, और वो स्क्विरल्स को देखने लगे जो गार्डन में दे वर लुकिंग फॉर फूड। जो वो गिलहरी थी वो अपना खाना जो अपने ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रही थी, एंड दे वर लुकिंग फॉर द फूड कि वो क्या खाएं, तो वो अपना फूड सर्च कर रही थी, एंड इनके जो फादर थे वो उन्हीं को देख रहे थे। ओके, सो स्करिंग मीन्स जब कोई हड़बड़ी में, तेज़ी से, जल्दबाजी में इधर उधर दौड़ता है। सो ये थे इनके पापा, कि इनके पापा ने क्या किया। टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड माँ लुक्ड एट द वीड स्प्राउटिंग इन हर फ्लावर गार्डन। इनका जो गार्डन था, फ्लावर गार्डन, तो वहाँ पे जो वीड्स, वहाँ पे घास उगनी स्टार्ट हो गई थी। स्प्राउट मीन्स व्हेन प्लांट इज एबल टू एक सीड से जब प्लांट ग्रो होना स्टार्ट करता है। ओके, सो इनकी जो ग्रैंड माँ थी, शी जस्ट लुक्ड एट द फ्लावर गार्डन, वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो घास है या झाड़ी है वो स्प्राउट हो रही है, वो जर्मिनेट हो रही है, वो बढ़ रही है। सो बट शी सेड कि लेज़ी डे के दिन कोई नहीं ये निकालता है, कोई भी घास नहीं निकालता है। सो व्हाट शी डिड वाज, शी वाज लुकिंग एट द बटरफ्लाइज। तो इनका जो काम, इनको जो करना चाहिए था, इन्होंने वो नहीं किया, बिकॉज शी फेल्ट इट वाज अ लेज़ी डे। सो इसके बदले वो क्या करने लगी, बटरफ्लाइज वहाँ पे थी, वो उन्हीं को देख रही थी। दे वर डांसिंग अबाउट द पेटूनियस। तो वो पेटूनियस जो है एक फ्लावर है, तो वो उसी के ऊपर जो है वो नाच रही थी। Grandpa looked at his dusty red van that needed washing. अब इनके जो दादू थे, उन्होंने अपनी वैन की तरफ देखा, उनके पास एक लाल रंग की गाड़ी थी, वैन थी, तो उसकी तरफ देखने लगी, एंड उनको लगा कि इसको धोने की ज़रूरत है, बिकॉज उस पर धूल हो सकती है या फिर कीचड़। सो ही फेल्ट कि इसको धोने की ज़रूरत है, बट अगेन इट वॉज़ अ लेज़ी डे। तो उन्होंने क्या किया, वो देखने लगे, उनकी जो एक नेबर थी मिसेस एल्बर्ट, उनके पास एक पेट डक थी, तो वो पोस्टमैन का पीछा कर रही थी, एंड इनके दादू जो है वही देख रहे थे, एंड ही वाज जस्ट लाफिंग अराउंड। ओके, सो ये जो है ये कर रहे थे इनके दादू। नाउ कमिंग टू हर मदर, मम वॉच्ड आवर कैट स्टॉकिंग अ सनबीम। सो इनकी जो बिल्ली थी अपनी, इनकी पेट, तो वो क्या कर रही थी, जहाँ जहाँ पे भी सनलाइट पड़ रही थी, इनकी जो कैट थी वो उसको फॉलो कर रही थी। स्टॉक मीन्स टू फॉलो। तो वो कौन देख रही थी, इनकी मदर। सो on in nutshell we can say, because it was a lazy day for everyone in the family member, because the day started on a lazy note, so that's why they chose to do something which doesn't need much energy, which doesn't need much and which doesn't need much physical work. So what they did was they were just looking around the things, like his father was looking at squirrels, her mother was looking at the cat, her grandpa was looking at the duck who was following or who was chasing a postman, and her grandmother was just watching butterflies
dancing. So this is something they did on a lazy day. So this is all for today. I hope this is understood to you. Thank you and have a very nice day.